Did you know that when Islamists invade, they destroyed 40,000 temple and all of the northern India temples that were thousands of years old, all destroyed. I actually did know about that, and I hate because of the videos that I've been watching and learning from. I did hate that, and it just I know this may be controversial to see, but it seems like Islam is a very oppressive, restrictive, and non-empathetic religion. It's kind of hard to root for when I just see what's happening with the people around Islam, with the immigration that's going on in Europe, with back in India, with them destroying temples and temple structures. It's damning. I hate it. All right, so let's see what this meltdown is all about. Now that we got a little extra context here, let's hear what our man Sharma has to say. काशी और मथुरा के बाद कुछ और प्रोमिनेंट मंदिरों को वापस लेने की बात हो रही है, इंक्लूडिंग अजमेर शरीफ। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया। हिंदू पक्ष दरगाह को संकट मोचन। So they're claiming that there's a Shiva temple inside Dargah. Okay, Ace, let me know. What do you think? Do they have? Is this true? महादेव मंदिर बता रहा है। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी किया है, जिससे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। और इस बात पे फिर से न्यूक्लियर लेवल के मेल्टडाउन शुरू हो गए हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे हैं आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे हैं? हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी। अब Hopefully they're using nuclear, or he's using nuclear as a figure of speech of just saying it isn't like DEFCON 5. You can cut the tension with a freaking butter knife. You could spread it like hummus, it's so thick. And in this one such case, in the court ordered the survey team to check this mosque, and the Muslim people pelted and stoned at the police and the survey team. Oh, no, no, no. और इसके रिस्पांस में करारा जवाब भी आ रहा है। Once a temple, always a temple. स्टैंड बहुत क्लियर है। Kind of agree. What's a temple? Always a temple. और मेरा बड़ा और मेरी पोजीशन ये है कि जहाँ जहाँ सबूत मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसको रेस्टोर करने के लिए हमें जब प्रूफ मिलेंगे तो हमारी लीगल टीम उस पर रिसर्च करेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च मिलेगी तो उस पर हम केसेस फाइल करेंगे, उसको रिक्लेम करेंगे, उसको रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जितने भी नंबर। लोग कह रहे हैं कि चाहे ज्ञानवापी हो या मथुरा हो या संभल का हरिहर मंदिर हो, संभल से जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश हुआ है। जिला What is this is the survey going out to the people, and then the people in that region are voting for if that is a temple or not? Like, कोर्ट ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं। दावा किया जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से जामा मस्जिद में हरि मंदिर है। that's exactly what it's saying. Okay, so it's saying that there is a Hari temple in the Jama Masjid? के जामा मस्जिद में हुए सर्वे में मंदिर के सबूत मिले हैं। सर्वे में करीबन 1200 के करीब फोटो लिए गए, करीबन 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई, जिसके बाद मस्जिद में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले। The mosque was destroyed. Strong evidence of an existence of a temple has been found. So you're telling me that they said, hey, there was going to be a temple here. We need this for religious purposes. And they said, nah, we're going to blow this shit up. यानी अब उस दावे पर This isn't a Call of Duty mission. मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर था। इसके रिस्पांस में कुछ शांति प्रिय लोगों ने शांति भी फैलानी शुरू कर दी है। Yeah, it seems like these Muslim people just love spreading their peace. And their peace seems to be with their fists. Like, where's the love in this? Where's the love? Where's the empathy? Where's the kindness? Where's the coexisting? और इन शांति दूतों को विक्टिम भी बताया जा रहा है। तुम लोगों की फटी की सिलाई करना ही इन लोगों का राष्ट्र धर्म हो जाता है। संभल में एक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ प्रोटेस्ट करते 3 मुसलमान युवकों की उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। Well, I mean, if they're throwing rocks and bricks and causing ruckus, the police got to do their job. The stoning and the so-called violence, there was a stoning of a bus, there was violence, and the burning of a bus was conducted by police informer. तो आइए आज के वीडियो में So they're saying, are they trying to say that from the Muslims that there's police that are infiltrated the group and are trying to like start riots by burning buses and looting and whatnot? Because we have something similar that happens here where we have like I forget what the technical term is, but police will go undercover in these protests and try to escalate it so that their people could come in and de-escalate the situation and resolve it fast.
में हम जानते हैं ये सारा मामला, ये सारे The leftists, yeah, yeah. The left are saying that they're accusing the Hindus of doing that, meltdowns or the people in there who are for the survey. Yeah, I'm picking up what you're putting down. और एक फंडामेंटल सवाल पूछते हैं कि क्या हमें जितने The left are brainwashed. हमारे टूटे हुए मंदिर हैं उन सबको वापस लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन दे मस्ट मीट 2 important क्राइटेरिया। क्या है वो क्राइटेरिया? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए 19 नवंबर को एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन ने संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। वकील विष्णु शंकर जैन ने पेश किया था दावा, जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसके बाद संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसी दिन पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, सुन भी लिया और संभल के इस मस्जिद को सर्वे करने का ऑर्डर दिया कि भाई इस मस्जिद के नीचे मंदिर है कि नहीं। शाम ही हो सकता है जामा मस्जिद का सर्वे। जिला प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स बुलाई है और साथ ही कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति के आदेश दिए हैं। लेकिन जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहां पर पहुंची, वहां पर कुछ शांति दूतों ने शांति फैलानी शुरू कर दी। इनके हाथ में पत्थर थे, चाकू थे, यहाँ तक कि This is tough. I can understand why this is tough. If there is a mosque, and I'm just trying to play like just devil's advocate, looking at all sides. If there's a mosque and there's a temple under it, I don't know if you respect what's there existing. It depends on the timing of when this thing was broken down and when the mosque was constructed. If it's been there for a minute, it's hard to. I definitely understand the minutia in this. पिस्तौल भी मौजूद थी। पुलिस ने इनिशियली उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर पुलिस पर ही शांति फैलानी शुरू कर दी। भीड़ और वायलेंस फिर इतनी अनकंट्रोल्ड हो गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और फिर गन फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें अराउंड 5 लोगों की मौत हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन 5 लोगों It doesn't matter which side. No one needs to die, right? I don't want any death. I don't want anyone dying. You know, death sucks. की मौत हुई है। They destroyed the temple and burned the main idols and the star of the mosque, so all of them would step on the idol before going into the mosque. उनमें से 3 ऐसे लोग थे जो उस एरिया से थे भी नहीं। आउटसोर्स करके लाया गया था इन लोगों को इस एरिया में शांति फैलाने के लिए इस सर्वे के दिन। अब देखिए, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहे थे, उसके रिस्पांस में पुलिस ने, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करना, तो पुलिस जब अपना काम कर रही थी, उसके रिस्पांस में विक्टिम कार्ड निकाला गया है। बड़े बड़े ट्रेंड हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक भाई साहब तो रोने ही लग गए। I think that Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to this country. I can tell you one thing, I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country, I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. Man, homie is passionate. And you have a lot of things, but you don't want to say it here? No, say it here. Say it with your chest. 10 toes down. कुछ लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं। विपक्ष प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल परे है। 2 मुस्लिम जातियों के वर्चस्व की ये लड़ाई आज हिंसा का रूप ले चुकी है। दरअसल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के विधायक इकबाल महमूद के परिवारों के बीच वर्चस्व की दशकों पुरानी ये लड़ाई है, जो तुर्क और पठान समुदाय से आते हैं। अब जब मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ, तो इन नेताओं ने आपसी रंजिश को इसकी आड़ में अंजाम तक पहुंचाया। 89 नॉट आउट राहुल गांधी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ लोग कोर्ट को ब्लेम करने लगे, कुछ लोग तो डायरेक्टली एक्स सीजेआई चंद्रचूड़ को ब्लेम। 4 killed in the Sambal. Former CGI Justice had allowed the survey of the mosque and the other Islamic structures, citing that would not be violated with peace. Who's responsible for the loss of the 4 lives? कि उनके वजह से इन लोगों की मौत हुई है। सही बात है भाई, दंगाई तो दंगा करेगा ही ना, उसका तो नाम ही दंगाई है। तुम क्यों अपना अनकटा हुआ गला लेके घूम रहे हो बाहर? तुमको सतर्क रहना चाहिए ना यार।
ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। I know where I know him from. This is the guy from Bhuvan, right? This is the guy, right? और अपनी जिंदगी From Dindora? को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। कोई सेंस है इस बात की? वायर के फाउंडिंग एडिटर भी चंद्रचूड़ को ब्लेम कर रहे हैं। चंद्रचूड़ भी सोच रहे होंगे कि यार बम मैंने फोड़ा, आग मैंने लगाई, कट्टा मैंने चलाया। ये तो वही बात हुई कि कोई आदमी लड़की छेड़ रहा है और उसको पुलिस ने आके फिर कंबल कुटाई की, तो हमारे देश के बुद्धिजीवी लड़की छेड़ू के बजाय लड़की के बाप को गालियां देने लगेंगे कि तुमने अपनी बेटी को घर के बाहर निकलने क्यों दिया। ना वो घर के बाहर निकलती, ना उसको छेड़ा जाता। लोग दंगाइयों को ही विक्टिम बता रहे हैं। जो संभल के सांसद हैं वो पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड ही क्यों किया। पुलिस कह रही है कि पहले तो पत्थरबाजी शुरू हुई, फिर हमें लाठीचार्ज किया। अगर तो पुलिस क्या खुद गुंडागर्दी करेगी, पत्थर चलाएगी? हैं? आप जवाब दें। मैं आप चौथा स्तंभ हो, पिलर हो आप इस देश का, आप जवाब दिए क्या कानून को रखवाली करने वाले कानून तोड़ेंगे, पत्थर चलाएंगे वो? अब बताइए, पुलिस टीम के कई जवानों ने कहा था कि उन पर पत्थर बरसाए गए थे, जिसके कारण कई पुलिस वाले भी इंजर हुए थे। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से Why did he have a baseball helmet or like a catcher's shit on, like pseudo baseball and football? निकल के आए और उन्होंने Now this is this is sensitive because you know this whole situation is so tense, and the police, right, are never. It's a thankless job, no matter where they're at, right? But that doesn't mean that they're impervious to making mistakes. And when they make mistakes, they need to be held accountable. But if I'm just being honest, and this is what I'm seeing for the police, I'm worried about the training and the resources that these guys have to actually be able to do their job. And when they're put in a state of panic and maybe in a situation that they've never been in before, as individuals, as humans, how do they react? If they don't react the best, I don't really want to blame them necessarily because the situation is so intense. I want to fall it back on training. However, they do need to be held accountable if they did mess up. उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता चली है कि एक दंगाई को जो गोली लगी है वो दूसरे दंगाई के कट्टे चलाने से लगी है। तो एक दंगाई जो पुलिस को शूट करने की कोशिश It was Gary Minotti, no? कर रहा था, उसने गलती से दूसरे दंगाई को गोली मार दी। अब देखिए, लेकिन जरा इन लोगों की बात को समझने की भी कोशिश कीजिए। ये नेहरू जी का, गांधी जी का सेक्युलर देश है। इन्होंने इतनी मेहनत से इस देश को सेक्युलर बनाया है। इस देश के सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए 10-12 पुलिस वाले अपनी जान भी नहीं दे सकते। क्या हो गया बापू के इस देश को? क्या हो गया नेहरू जी के इस देश को? एक समय पर हमारे देश की पुलिस कार सेवकों को गोली चलाया करती थी। आज ये पुलिस दंगे रोक रही है। क्या हो गया नेहरू जी के देश को? क्या हो गया बापू के देश को? एक समय था जब बापू नोआखाली के हिंदुओं को कहते थे कि अगर मुस्लिम तुमको मार रहे हैं तो चुपचाप मर क्यों नहीं जाते? मुसलमानों से नाराजगी मत रखिए, पुलिस आपको मदद करने के लिए नहीं आ रही है। आज देखिए, पुलिस है जो दंगाइयों को पीट रही है और पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या हो गया बापू के और नेहरू जी के इस देश को? और ओवैसी बाबा का तो इस लेवल का मेल्टडाउन हो रहा है कि साला प्रोटेक्शन पहनना पड़ेगा। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? It does feel like on both sides, right? Over here in America, we've had these past 4 years, there's really these past 8 years, it feels like America itself has become more and more divided. People have been at each other's throats. Literally, you can cut, like, I already said it earlier, it's been so thick, it's been like hummus and you could spread it on a piece of pita and eat it. Like, it's insane on how thick the tension in the air has been. But I will say with Trump getting elected over here, it feels like, at least I'm pro-Trump, so for me it feels like it's a sense of like alleviation. I'm like, oh, okay, we're starting to get back in the right direction. Hopefully, strong young leaders can get in places of power in India and get you guys united. I don't want to make it too lighthearted, but I only know how to make humor. You guys, I hope there's a Jake Sully out there from the Avatar who can get all the different places all in India, all the different cultures, all the different walks of life, and bring them together and unite it and bring India forward to a superpower. Gandhi really said that if Muslims are killing you, then why don't you die quietly? That's a wild quote. That's a wild quote. Don't die quietly. Do not die quietly. Be hard to kill.
That's what I've learned in paintball. That's what I've learned in gaming. Like, if you're playing Call of Duty or Marvel's Rivals, like, be hard to kill. Don't just throw your life away. क्या करना चाह रहे आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा, उसका ना कन्वर्जन होगा, ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। अब देखिए, ओवैसी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों का डिटेल में जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरा देखते रहिए। लेकिन इस समय पर भारत में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। हिंदू टेम्पल्स जिनको इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ा था, क्या उसको हमें रिक्लेम करना चाहिए कि नहीं? एक साइड बोलती है कि हर एक मंदिर जिसको तोड़ा गया है उसको रिक्लेम करो, जितना भी छोटा हो या बड़ा मंदिर हो। दूसरी साइड, जिसमें मुस्लिम साइड आती है और जिसमें कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी आते हैं जिनको मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं, उनका कहना है कि अगर हर मंदिर को रिक्लेम करना शुरू कर दिया जाएगा तो मुस्लिम्स और बाकी माइनॉरिटीज भी इनसिक्योर होने लगेंगी कि भाई हमारी तो हर एक प्लेस ऑफ वर्शिप पे ये लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे। No, that's kind of true. If you start taking back every single temple or start reclaiming some of the stuff, it's going to give a level of feeling of insecurity for these other minorities, and maybe even a feeling of oppression and favoritism. I don't know how to start, right? I don't know what the answer is here. Obviously, I'm just a foreigner who very ignorant to a lot of the details. But damn, when you mix religion and state, does it not get messy? तो इस मुद्दे पर आपका सीईओ होते हुए मेरी पर्सनल फीलिंग क्या है? Should it be reclaimed? The first thing that comes to my head is yes, right? Any invaders that came in and took shit, it should go back to the people it was taken from. That's my initial feeling. देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारे टूटे हुए मंदिरों को वापस लेना बेहद जरूरी है। हिस्टोरिकल क्राइम्स के लिए हिंदू कम्युनिटी But I don't know where you draw the line. That's where it gets murky. That's where it gets so murky, because now if those invaders are trying to or have effectively become neighbors and establish themselves within the community and have a right to the community, it's so messy. को जस्टिस मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन किसी भी मंदिर को रिक्लेम करने के लिए मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। पहला क्राइटेरियन है कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस होना चाहिए कि उस जगह पर एक हिंदू स्ट्रक्चर था। That's very fair. Have like actual proof that there was a temple here that had like actual importance. से तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। और दूसरा क्राइटेरियन ये होना चाहिए कि कई सालों से हिंदू कम्युनिटी जो है वो उस स्ट्रक्चर के टूटने के बावजूद वहां पर पूजा करती हुई आ रही है, वर्शिप करती हुई आ रही है, या रिचुअल्स परफॉर्म करती हुई आ रही है, यानी उस टूटे हुए मंदिर से अभी भी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तभी जाकर हमें मंदिर को रिक्लेम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं होते और फिर भी हम उस स्ट्रक्चर को क्लेम करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो थोड़ा अनईजी फील करेगी, और ये एक वैलिड कंसर्न है उनकी तरफ से। जहां दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं होते वहां मुझे लगता है कि हमें रिक्लेम नहीं करना चाहिए। ये हिंदू कम्युनिटी की तरफ से एक गुडविल का जेस्चर होगा। No, this is a fair compromise. This is him coming at it, trying to find an actual solution, giving up some criteria of it having a historical reference that if it does and something has been built over it, is that place still used for rituals and performance and stuff for the temple? I think I think this is a goodwill gesture from the Hindu community as a solution for this. Minority community. Hindus were a majority until Turkey. Now all of these places like Iran, Afghan, Pakistan fell to Islam invaders. इसके लिए, लेकिन जहां दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं, देखिए संभल जो जगह है वो हमेशा से हिंदू धर्म में, हिंदू कल्चर में एक इंपॉर्टेंट जगह रही है। प्राचीन समय में इसे शंभुपालिया या फिर संभलेश्वर के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म स्थल है। जो What in the
Indian Doctor Doom am I looking at right here? कल्कि के रूप में यहाँ पर आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे, जिससे सतयुग की शुरुआत होगी। इनफैक्ट जो कल्कि मूवी निकल कर आई थी उसमें जो संभल जगह थी वो भी इसी संभल से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा और भी कई सारे हिंदू ग्रंथों में इस जगह की चर्चा है, चाहे स्कंद पुराण हो या फिर श्रीमद् भगवतम हो। और इसी संभल में विष्णु जी का हरिहर मंदिर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर की नींव भगवान विश्वकर्मा ने खुद रखी थी। ये मंदिर हिस्टोरिकली हिंदुओं के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्शिप की जगह थी और इसका एविडेंस Was it a good movie? इनफैक्ट सिर्फ हिंदू टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि इस्लामिक टेक्स्ट में भी मिलता है। खुद अबुल फजल के ऐने अकबरी में संभल का विष्णु मंदिर बताया गया है और साथ ही लिखा गया है कि यहाँ रेगुलरली एक ब्राह्मण पंडित द्वारा पूजा की जाती थी। इसी को कोट करके हिस्टोरियन डीपी दुबे अपनी किताब रेज और वेज में बताते हैं कि ये वही जगह है जहां बाबर ने मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई है। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि इस्लामिक रूल के समय पर आपने हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा ही होगा कि भारत में कितने प्यार मोहब्बत का समय था उस समय। लेकिन इस प्यार मोहब्बत के बीच में गलती से मुस्लिम से अराउंड 5000 से 40,000 के बीच में मंदिर टूट गए, अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज यू बिलीव। ऐसा प्यार एक बार तुगलक को संभल के मंदिर पर आया था और वो इस संभल के मंदिर को नष्ट करना चाहते थे। तो बाकायदा I did know about this, and shout out to Ace for trying to quiz me on it earlier, but I did know about that fact. Too many temples are destroyed. I hate when I see this has happened with like the Library of Alexander, with this like the largest gathering of literature was burned to the ground. I don't like seeing knowledge, structures, any of that be destroyed. I want to see as much of that be as preserved as possible. बुद्धिस्ट चाइनीज एम्परर ने अपने दूतों को भेजा था संभल तुगलक से रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो इस मंदिर को ना तोड़ें, क्योंकि महायान और वज्रयान बुद्धिज्म के मुताबिक भी कल की अवतार जिसका नाम रुद्र काकरिन होगा, उनका संभल में जन्म होने वाला है। जिस वजह से संभल ने मंदिर रहने दिया, लेकिन भारी जजिया डिमांड किया उसके रिस्पांस में। ऐसे ही बाबर ने भी भारत आने के बाद प्यार दुलार में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। माना जाता है कि संभल का ये हरिहर मंदिर भी ऐसा ही एक मंदिर था और ये बात बाबर की बायोग्राफी बाबरनामा में भी है। माना जाता है कि हरि मंदिर के पार्ट्स का उपयोग किया गया ये नई मस्जिद बनाने के लिए। प्रोमिनेंट हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन का भी यही मानना है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि बाबर के ही ऑर्डर पर इस मंदिर को मस्जिद में फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था। In a place called Sambhal, and there was a temple at Sambhal. Babur ordered his general to destroy that temple, and the mosque. हिस्टोरियन राम शर्मा भी इस बात से अग्री करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अकबर के समय में लिखी हुई ऐने अकबरी में भी ये क्लियरली लिखा हुआ है और ऐने अकबरी में ये भी दिखाया गया है कि इस समय पर इस मंदिर का हिंदुओं में बहुत इंपॉर्टेंस था। तो अभी तक मैंने आपको हिंदू सोर्सेज दिखाए, मैंने आपको इस्लामिक सोर्सेज दिखाए, अब मैं आपको अंग्रेज सोर्सेज भी दिखाता हूँ। आर्कियोलॉजिकल एक्टिविस्ट कैम्बल कार्लाइल की 1879 की एक रिपोर्ट। It took him 3 months to burn the library. See, like I don't know anything about this library. Let's I want to learn more about that in another video. But once more, all of this knowledge, I hate seeing that it's been burnt, because think about how much innovation and how much progress we could have if we had access to all of our past. रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने यहाँ के आर्किटेक्चर का सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने विष्णु मंदिर को तोड़कर उसके रिमेन्स का इस्तेमाल करके किया गया है। इस मस्जिद के फ्लोर में खुदाई करके कार्लाइल ने मंदिर के पत्थरों और मूर्तियों की रिमेन्स देखी। कार्लाइल ने यह भी बताया कि मस्जिद के फ्लोर पर कई पत्थरों को उल्टा लगाया गया है। Okay, so it's obviously both sides can validate that there was a Hindu temple here. ताकि उन पे बनी हिंदू नक्काशी को छुपाया जा सके। तो देखिए, यहाँ पर हमें 3 अलग-अलग तरह के सोर्सेज से पता चलता है कि यहाँ पर मस्जिद के पहले एक मंदिर खड़ा था। तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया है रिक्लेम करने का, वो तो बड़े आराम से मीट हो जाता है। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद को मूल रूप से पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। अब कार्लाइल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें बाबर का नाम लिखा गया है। साथ ही ये क्लियरली लिखा गया है कि बाबर के ऑर्डर्स पर यहाँ मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाया गया था। कार्लाइल के अकॉर्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद ही इस फर्जी शिलालेख को बनवाया था ताकि वो मंदिर को हड़प सके और इस पर अपना अधिकार जमा सके। इनफैक्ट इस बात को उस समय के कुछ मुस्लिम्स ने भी माना था। कार्लाइल के अकॉर्डिंग 1850 से पहले तक मुसलमानों का इस मंदिर पर कोई हक नहीं था। इनफैक्ट लेकिन Damn, even that they said they didn't have a right. Muhammad did not get possession of the building until about the time they took possession.
God, that's crazy. They're like, nah, we don't even deserve this shit. In 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद फोर्सफुली इस मंदिर पर हिंदुओं को हटाकर छीन लिया गया, जिसके बाद यही नकली शिलालेख करके मुस्लिम कम्युनिटी ने एविडेंस बनाकर उस समय ब्रिटिश कोर्ट में पेश की और इस मंदिर को हड़प लिया, जिसके बाद अंग्रेजों के कहने के बाद इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया और हिंदू इस एरिया में काफी समय से माइनॉरिटी में थी, इसलिए उनकी आवाज को दबा दिया गया। लेकिन कार्लाइल कहते हैं कि इसके बावजूद हिंदुओं ने इस जगह की दावेदारी नहीं छोड़ी। इस जगह पर इतने सालों से कम्युनल टेंशन बनी रही। इनफैक्ट कम्युनल टेंशन इतनी थी, हिंदू इतनी जोर से अपनी क्लेम को खत्म नहीं करना चाहते थे कि अल्टीमेटली अंग्रेजों को इस मामले को खत्म करने के लिए 22 दिसंबर 1920 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत इस मस्जिद को एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया ताकि हिंदू कम्युनिटी को यहाँ से बिल्कुल खदेड़ा जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं ने उस जगह पर अपनी आस्था बनाए रखी। कई लोकल हिंदू आज भी उसे हरिहर मंदिर मानते हैं और वहां पर अपनी पूजा करते हैं। और what is the other side so resistant to just giving up this temple? Why is it so significant to them when obviously these people have such a strong feeling towards this fucking temple? वहां पर अपनी आस्था बनाए रखते हैं। घर के लोग यही बताते थे कि जामा मस्जिद अब बन गई है, पहले ये जो थी हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर, हाँ आपने यही सुना था। यहाँ पे सारे हिंदू हरिहर मंदिर बोलते हैं। हरिहर मंदिर के नाम नहीं, ये मंदिर है क्या? वैसे ही मंदिर है क्या? हरिहर मंदिर है ये। आप भी ऐसा, आपको भी लगता है? लगता क्या है तो? Well, of course she was there when it was being built. Why are we asking her? Of course she's a little biased. She saw this thing being built. I think I've seen her in Spirited Away. She might be one of the witches. Respectfully. हरिहर मंदिर, हिंदू लोग तो हरिहर मंदिर के। तो संभल के केस में तो लगता है कि दूसरा क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है। इस तरह के कई केसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने हिंदुओं को जस्टिस मिलने से रोकने के लिए एक और काली करतूत की है यहाँ पे, जो मैं आपको अब बताता हूँ। इस काली करतूत का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए 1978 में हिंदू कम्युनिटी ने फिर से इस जगह पर संभल में 1879 के सर्वे के बेसिस So they got ownership of it. How did they lose it? पर अपनी ओनरशिप कोर्ट से मांगी, जिसके कुछ सालों के बाद एक ऑर्डर के तहत एएसआई ने इंडिया के सभी डिस्प्यूटेड साइट्स का सर्वे करना शुरू कर दिया। उन साइट्स में से एक साइट ये संभल वाली डिस्प्यूटेड साइट भी थी। हिंदुओं ने अपने क्लेम्स को मजबूत करने के लिए देश भर में टेंपल रिक्लेमेशन मूवमेंट शुरू कर दी। ज्ञान वापी से लेकर शाही ईदगाह सब जगह, जिसका सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल था राम जन्मभूमि मूवमेंट। वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती, हुजूम जुटता जा रहा था। इसी बीच क्या कुछ हो रहा था वो हम आपको आगे तस्वीरों में दिखाएंगे। आडवाणी दिल्ली पहुंच चुके थे। मुलायम सिंह यादव, the then Janata Dal Chief Minister of Uttar Pradesh, was riding a secular perception wave, deeply critical of Advani's Rath Yatra and also allegedly not happy with Lalu stealing the spotlight by arresting Advani. लेकिन 1991 में सेक्युलर फोर्सेस ने देखना शुरू किया कि देखिए ये जो टेंपल रिक्लेमेशन मूवमेंट है, इससे हिंदू जो हैं ये कास्ट, रीजन और लैंग्वेज से बाहर जाकर यूनाइट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है हिंदुओं के लिए, जो हिंदुओं को जोड़ रहा है। कहीं उनका वोट बैंक जिसको फ्रैगमेंट करके ये अपनी रोटियां सेक रहे थे इतने सालों तक, कहीं ये फ्रैगमेंटेड वोट यूनाइट ना हो जाए। तो इस यूनिटी को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया, ताकि राम जन्मभूमि के अलावा हिंदू किसी भी और डिस्प्यूटेड साइट को वापस रिक्लेम ना कर सके। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस साइट आजादी के दिन जिस स्टेट में थी वो उसी स्टेट में बनी रहेगी, यानी आजादी के समय जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, एक्सेप्ट फॉर राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर का जो If we have the Places of Worship Act back in 1991, that's 3 years before my old ass was born. Why can't we just honor this shit? Why is all of this being up to question now? डिस्प्यूट है वो आजादी के पहले से चल रहा था। इस एक्ट के पास होने के बाद देश भर It's the same like our Democrats. Yeah, that's what I've been. It's like I said, it's been refreshing to see that like the American issues, American political issues that we have are not unique to us, right? Being dumb and idiotic is spread around the world, and India has this problem too. Minority appeasement, yeah, because it's just, and the minority appeasement is not
for true morality. It's just purely for optics. सर्विस को बंद करवा दिया गया। Unfortunately, No, इस act के totally. आने के बाद हिंदू चाहकर भी अपने पुराने historical sites पर वापस And it's the people. If I go to a city, strong, thriving middle class, manufacturing area, maybe upper middle class, I'm sure we would all be able to sit down, have some food, have some drinks, laugh about the day, and talk about how fucking retarded our government is. ओनरशिप नहीं ले पा We रहे। are the same. इसको We're all the लेकर कई same. बड़े-बड़े हिंदू एडवोकेट्स ने आवाज उठाई है कि ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डिस्क्रिमिनेटरी है। It's a must. Because unless I write them down, I cannot remember them. Yeah, and there is a lyricality to it. Yes. Dust of thoughts settle. It's always writing that has informed me, reading, things that have been written by people. Because when you write things, there is a kind of, जिसे हिंदी में कहते हैं ठहराव आ जाता है। Places of Worship Act of 1991, wherein an exception was created only with respect to Ram Janmabhoomi, thereby taking away the rights of the community with respect to all other places of worship. That itself renders that particular legislation unconstitutional. लेकिन देखिए ये काली करतूत तो है, लेकिन इस काली करतूत में भी थैंकफुली एक रे ऑफ होप दिख रही है। हिंदू साइड ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अयोध्या वर्डिक्ट आने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कुछ लूपहोल्स ढूंढने शुरू किए कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। तो जब आपने किसी मंदिर को आपने जबरन कब्जा किया है, किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ लेने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है, वो मंदिर का ही रहता है। रिलीजियस कैरेक्टर को एसर्टेन करने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल सूट्स फाइल हो सकते हैं। तो रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन हो रहा है और इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई हर्डल नहीं है एज ऑफ नाउ। पर अगर उसको रिपील कर दिया जाए तो वो हम लोग ने ड्रीम सिचुएशन। एक ऐसे एडवोकेट है विष्णु जैन, जो वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल के प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने टेंपल रिक्लेमेशन के सारे पिटीशन फाइल किए हैं, चाहे वो ज्ञानवापी हो या मथुरा का शाही ईदगाह हो। खैर, Once more, I understand the simplicity of that, and that it's easy to get on board with. But I think the idea of once a temple, always a temple, I don't disagree with that statement at all. But I definitely think there has to be criteria met so that there's at least a goodwill gesture for the other side that's going to feel like you're going in and taking away from them, making them feel oppressed, making them feel insecure, and making them maybe revolt or react in a way that is not good for the community. इसी लूप होल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी ओरली इंटरप्रेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि चलिए भले ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी रिलीजियस जगह का नेचर या कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, लेकिन एक जगह के रिलीजियस कैरेक्टर को जानने के लिए सर्वे तो किया जा सकता है ना। जानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करके अब देश भर में जो डिस्प्यूटेड साइट्स है, Totally. I just wish there was more English. सर्वे हो रहा है कि इस जगह का रिलीजियस नेचर जानने की कोशिश करते हैं। Okay, I got a little bit there. और यही रिस्पॉन्स है जो इस वीडियो के शुरुआत में सवाल ओवैसी ने पूछा था, उसका जवाब विष्णु जैन ने दिया है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं। See, I got a little bit there too. नहीं होगा जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, और एएसआई ने स्मारक को 1920 में नोटिफाई किया था, तो यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। और She's thinking, why are you yelling at me? अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूँ, एएसआई ने आज माननीय न्यायालय के सामने एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें एएसआई कह रही है कि हम ही वहां पे नहीं घुस पा रहे हैं। She just said, good morning, how was your day? He just started yelling. मुझे आप जब भी आप कभी इनसे बात हो या फर्दर इंटरव्यू करें, इनसे पूछेगा बहुत विनम्रता से कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो एएसआई द्वारा संरक्षित है और एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। जवाब नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। कोई राइट ऑफ वे चाह रहा है आर्कियोलॉजिकल एक्ट के तहत, भाई राइट ऑफ वे चाहिए तो आके बैठे ना पिटिशनर, कौन रोक रहा है तुमको मस्जिद में? राइट ऑफ एक्सेस मांग रहे हैं, माशाल्लाह आपकी भी दाढ़ी है, आके मस्जिद में बैठी ना, वो उन्होंने मेरे लिए कहा, तो उनको ये नहीं पता है हमारे साथ दाढ़ी में हमारे तिलक भी है, तो अगर वहां पे बैठेंगे ना तो वहां पे सर तन से जुदा हो जाएगा। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एएसआई ने जो एफिडेविट दिया आप उसको पढ़िए अंजना जी। एएसआई ने कहा है कि वहां पे एएसआई के अधिकारी नहीं घुस पा रहे हैं। राइट ऑफ एक्सेस इसलिए मांग रहे हैं ओवैसी साहब क्योंकि एएसआई के मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं घुस पा रही है। और अब बात करते हैं अजमेर दरगाह की। अभी हाल में ही हिंदू सेना ने अजमेर I respect him saying it 10 toes down. दरगाह जिसमें बॉलीवुड स्टार्स मत्था टेकने जाते हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में एक पिटीशन डाली है जिसमें कहा गया है कि जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो असल में महादेव का मंदिर हुआ करता था। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया। इस दावे को पुख्ता करने के लिए
उन्होंने 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया। पिटीशन में ये भी कहा गया है कि दरगाह मोहम्मद घोरी के इन्वेजन के बाद बनवाया गया था, जब उन्होंने कई हिंदू मंदिर तोड़े थे। बेसिकली हिंदू पक्ष का क्लेम है कि दरगाह कॉम्प्लेक्स को चिश्ती की मौत की 250 साल के बाद महमूद खलजी और मुगलों द्वारा बनाया गया है, और सभी मुख्य इस्लामिक ढांचे जो हैं वो हिंदू और जैन मंदिरों के टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को लेकर बनाया गया है। हिंदू साइड का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो सबसे पुरानी इमारत है जिसे सैंडल खाना कहा जाता है, यहाँ रोज ख्वाजा के मकबरे के लिए चंदन तैयार किया जाता है। वहाँ एक दरवाजा है जो जमीन के नीचे तहखाने की तरफ ले जाता है, जिस तहखाने में एक सेलर है जिसमें ख्वाजा के रिमेन्स हैं। यही वो जगह है जहाँ पहले महादेव का शिवलिंग था। इस जगह पर पहले रोजाना महादेव पर चंदन का लेप किया जाता था। और हिंदू साइड का ये भी क्लेम है कि यहाँ पर सारे हिंदू सिंबल्स भी मिलते हैं। तो अब जो एक्स चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंटरप्रिटेशन की है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उस इंटरप्रिटेशन के तहत 20 दिसंबर को अजमेर शरीफ को सर्वे करने की जो हियरिंग है वो फिक्स की गई है। और दरगाह कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। Man, once more, when you mix religion and politics, does it get messy? और ASI सबको नोटिस भेज दिया गया। Oh my lord! यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है, और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए। अब दरगाह के सेक्रेटरी भी इसको कह रहे हैं कि भैया ये तो बीजेपी का एजेंडा है। कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है, ये एक एजेंडा है। हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप छीनने की। Doesn't matter which side you're on, we should all agree mob lynching, too far. Chill the fuck out. कोशिश की That's a penalty. Flag on the play. जा रही है। अब देखिए, जहां Lynching is not allowed. तक मैं देख रहा हूँ, अजमेर में पहला प्रिंसिपल ये है कि Is that fair? Is that fair? आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। जब तक हमारे पास बिल्कुल क्लियर एयर टाइट प्रूफ नहीं आता है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली हिंदू मंदिर था या हिंदू स्ट्रक्चर्स थे, तब तक पहला प्रिंसिपल हमारा मीट नहीं होता। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि उस साइट पर हिंदूज का कंसिस्टेंटली प्रे करना, वर्शिप करना या रिचुअल परफॉर्म करना भी प्रूव नहीं होता है। अजमेर के केस में एटलीस्ट इस समय दोनों क्राइटेरिया जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हिंदुओं को इस साइट को रिक्लेम करने का डिमांड नहीं करना चाहिए। अगेन ये मेरा ओपिनियन है और मैं जानना चाहता हूं कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। हो सकता Our primal animalistic nature from our DNA get awakened? Yeah, that's what happens when you fuse religion and state together. You get primal animalistic nature and logic. है कि मुझे You turn into fucking werewolves. इस सिचुएशन के बारे To like Wukong, just fucking fighting each other, just yeah! में पूरी नॉलेज नहीं है, और हो सकता है कि यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया आगे जाकर मीट होने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो I'll be happy to change my opinion। देखिए अगेन मुझे लगता है कि There was some more English. I appreciate you. हम ये I'm putting a lot of trust in these captions. दोनों क्राइटेरिया फॉलो करें तो हम काफी टेंपल्स को रिक्लेम कर सकते हैं बिना मुस्लिम्स या क्रिश्चियन कम्युनिटी को अननेसेसरीली इनसिक्योर फील करवाएं। और इसके साथ साथ हम जितने भी ये लेफ्ट विंग मीडिया आउटलेट्स हैं और NGOs हैं, I don't understand why the Christian community would feel too upset about this. I could only see the Islamic community being like, what the fuck? जो आप जानते ही हैं कि इस मामले पर हिंदुओं को अटैक करेंगे, उनको भी एक क्लियर जवाब दे सकते हैं। I think it's just smart politics as well। अब Yeah, do the whole video like that for me. देखिए ऐसे कितने मंदिर हैं जिनको Shit. पोटेंशियली रिक्लेम किया जा सकता Yes? है और जहां No. पर पोटेंशियली दोनों क्राइटेरिया मीट हो सकते हैं। सीताराम गोयल की माने तो भारत में करीब 1800 से ज्यादा ऐसे इस्लामिक साइट्स हैं जिनका पहले हिंदू टेंपल्स होने का एकदम फुल प्रूफ एविडेंस है। अकेले आंध्र प्रदेश में 140 से ज्यादा साइट्स हैं। बिहार में 77 ऐसे साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। सिर्फ दिल्ली में 72 ऐसे साइट्स हैं। गुजरात में 170 से ज्यादा ऐसे साइट्स हैं अपेरेंटली। तो देखिए इस मुद्दे के सोल्यूशन में मैं आपको कुछ कोट्स बताना चाहता हूँ। कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था, स्टडी द पास्ट इफ यू वांट टू डिफाइन द फ्यूचर। यानी कि अगर Yes, and we also modernize that if you don't learn from the past, you're doomed to repeat it. अगर हम अपने फ्यूचर को शेप करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने अतीत को समझना पड़ेगा। पर्ल एस बक ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड टुडे, यू हैव टू सर्च यस्टरडे। आज के जमाने को True. आज के समय को I'm picking up what they're putting down.
और फ्यूचर को समझने के लिए हमें अतीत का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हिस्ट्री प्रेजेंट को क्लैरिटी देती है और फ्यूचर के लिए डायरेक्शन सेट करती है। रॉबर्ट ए हाइनलाइन ने कहा था कि अ जनरेशन व्हिच इग्नोर्स हिस्ट्री हैज नो पास्ट एंड नो फ्यूचर। अगर हम अपनी And we can look at America right now because we have not been respecting our past, not learning from it, and just kind of blindly picking and choosing shit just to be pissed off about instead of looking at it as a whole, because nothing exists in a vacuum. हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं या भूलते हैं तो हम अपने रूट्स और अपने फ्यूचर दोनों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आज की दुनिया में हमारी हिस्ट्री को जो हम समझ रहे हैं अब धीरे धीरे, उससे कुछ अनकंफर्टेबल सवाल उठते हैं। क्या कोएग्जिस्टेंस के नाम पर पास्ट को इग्नोर करना सही है? क्या एक नेशन बिना पास्ट का समाधान किए सही मायने में प्रोग्रेस कर? You don't have a history and the real history is not taught. I mean, we do have a history. It's just really short, really fucked up. A lot of goods come out, a lot of bads come out. I look at America's history like yin and yang. We have a good side, like a light side with a little bit of darkness in it. We have a dark with a little bit of light. कर सकता है। ये सिर्फ एक रिलीजियस मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की आइडेंटिटी का मुद्दा है। भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, whether people like it or not। भारत का धर्म भारत की आइडेंटिटी है। ये वैल्यूज, फिलॉसफीज और कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है जो हजारों सालों से इस धरती को शेप करते हुए आए हैं। भारत की हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज में जो दरारें हैं वो तब तक फिक्स नहीं हो सकती जब तक दोनों कम्युनिटीज के बीच में प्रॉपर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ना हो, यानी जो हिस्ट्री में गलत काम हुए हैं उनको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। And there also has to be a generation between the Hindus and Muslims over there that come together and put the damage, the hurt, the hate of the past generations and leave it in the past and understand it. Don't like ignore it, but leave it in the past and work on being a happy, honest, truthful, and coexisting generation going forward and teaching that moving forward. अगर हम हिस्ट्री में हुए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कास्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से जब तक हम हिस्ट्री में हुए इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को We have written a history of 5,000 years and it goes back to 10,000 years and even goes back even further. Yeah, but we have Iron Man. And if you're like, yeah, then I'm like, wait. Also Spider-Man. और इस्लामिक अट्रॉसिटीज को एग्जामिन नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक How about that for some history? फ्यूचर में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। It's as You have Hanuman? I don't know who that is. simple as that. इन साइट्स को रिक्लेम और प्रिजर्व करके हम सिर्फ मंदिरों को रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सिविलाइजेशनल प्राइड की फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं जो डिवाइड करने के बजाय पूरे देश के लोगों को यूनाइट करेगी अंडर वन सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। लेकिन अगेन मेरा ये मानना है कि किसी भी स्ट्रक्चर को रिक्लेम करने के लिए दोनों क्राइटेरिया मीट होने जरूरी हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डू यू एग्री विथ मी कि दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए या नहीं? आई थिंक इट इज अ गुड वे टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच एंड लेफ्ट विंग मीडिया के लिए भी हमारे पास एक जवाब तैयार है, बट फिर भी I'd like to know your opinion। और देखिए गाइस, एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। पिछले साल हमने एक आर्ट कंपटीशन अनाउंस किया था जिसमें बहुत सारे हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए थे, एंड इस साल भी मैं एक आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। That's cool. That's cool. Showcase the talent. Showcase the talent. My opinion is that there needs to be a generation or an individual that needs to be the Jake Sully of India and be able to unite all these different communities and religious factions together and put the damages, the hate, the vitriol of the past and leave it in the past and then work on building a bridge for a future that is built on love, empathy, truth, and honest communication, honest dialogue. That's what I think. But I'm an idiot.